This is a DILR set from CAT 2025 slot 2 paper. So we'll just read initially and then we will get into the depth of it and then we will try to draw inferences and answer questions. The following chart depicts details of research paper written by four authors. So there are four authors, Arman, Rajan, Chintan and Devin. So we can call them ABCD for the purpose of this set. The papers were four types: single author, there is only one author, uh, two author, three author, and four author. So we can understand like uh, there are like combination of two authors, three authors, and four authors. These are the types of paper. So it can be single author, two author, three author, four author. All right, that is written by one, two, or three, or all four of these authors respectively. Again, they have explained it what it is. What the previous line is saying. No author were involved in writing these papers. No other authors except ABCD were involved in writing this paper. So these are the only four authors those are involved, right? Then they have given you two bar charts. So number of papers by each author and then number of papers by type. So two type of data is available. So we will, come back to it. And there are four adjustments that they have given, which the following additional facts are known. So these four adjustments also you have to consider. And considering all these, this the data and whatever information they have given, you probably have to create a matrix and then try to uh, entangle whatever comes out and then draw inferences and then probably uh, get into the questions and then answer each one of them. So we will just whatever is given in this bar chart, we will start with that only and then we will come to information. Okay. There can be other approaches also, like you can get into the information first or maybe start from any other clue that you can fetch, which is probably convenient to you. But I'm going with this bar chart. So number of papers by each author. So this is like Arman is five, right? Arman has written how many? Five papers. Brajan has written eight papers. Chintan has Chintan has authored 12 papers, and Devin has authored 10 papers. So let's put this in a table. So here is this table. So when we say Arman, it is 5, B it is 8, C it is 12, and D it is 10. This is coming from the first bar graph. And coming to the second one, and I have simply, like single author is 10, right? So in single author, the total papers that the total paper that were authored are like 10. Two authors, 4, three authors, 3, and four authors, 2. So this is coming from this graph, right? Two authors are 4, three authors, 3, and four authors are 2. So this is what I can accumulate from the bar diagram, right? So then we will deal with the information which was given. So it is saying that there are two authors. There are four papers which were authored by two people. So there are like two people who are contributing to this two author papers. So we can multiply this by two, right? So that we will get to know how many total contributions were there. So 4 multiplied by 2. Since this is two authors, right? This is single author. So even if you multiply by 1, so it will be 10 only. This is two authors. So it will be 4 papers multiplied by 2. So it will be 8, right? Again, this is three authors and total number of papers are 3. So we have to multiply this by 3
and it will be 9. So these are the total like contributions. How many contributions were made? Like how many author, how many times an author will appear in a paper, you can say, uh, to be precise. कि एक author कितनी बार आएगा एक एक पेपर में, लाइक कौन से पेपर में उसका क्या कॉम्बिनेशन होंगे, राइट? तो वो इसमें होगा कि जो 3 जन का ग्रुप है, 3 जन का ग्रुप मिलके 3 पेपर लिख रहा है, और ये थ्री ऑथर, मतलब थ्री ऑथर, थ्री, ये थ्री ऑथर वाला टाइप है, तो उसमें 3 जन की जोड़ी होगी। तो टू ऑथर जो वाला जो पेपर है, उसमें 4 पेपर टोटल आए हैं, और उसमें 2 जन की जोड़ी है, तो मल्टीप्लाई 2 से किया। सिमिलरली जो 4 ऑथर्स वाला है, उसमें 2 पेपर लिखे हैं टोटल, और इसमें चारों के चारों लोग होंगे, ठीक है? तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो यहाँ से आगे हम लोग इसको फिर दोबारा एक टेबल में कैप्चर कर लेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला, राइट? एंड देन वी विल try to try to tackle each of the adjustment which is given, each of the information. So coming to the first one, each of the authors wrote at least one paper, one of each of the 4 types of papers. Now this statement is saying that ए ने अगर सिंगल ऑथर का ए ने सिंगल ऑथर का एक पेपर तो लिखा होना चाहिए, टू ऑथर का एक लिखा है, थ्री ऑथर का मिनिमम एक लिखा होना चाहिए, और 4 ऑथर्स का भी एक लिखा होना चाहिए। एंड दिस फॉलोज फॉर एवरी वन लाइक बी सी डी। तो हर एक ने हर एक टाइप का, इन शॉर्ट, हर एक ने, हर एक ऑथर ने हर एक टाइप का एटलीस्ट एक पेपर लिखा है, तो कहीं भी कॉलम में जीरो नहीं आएगा, इन शॉर्ट there will be no zeros in this column. It should be at least one or more than one, right? So this is what the first adjustment or the first additional fact that they have given is trying to convey. So there will be no zeros, at least one, at least one contribution should be there in each type from each author. So this is what is first adjustment is about. Now second one, the 4 authors wrote a different number of single author papers, right? So the 4 authors wrote different number of single author papers. So this is talking about single author paper. तो सिंगल ऑथर पेपर मेरे टोटल है कितने? 10। तो मुझे 10 का ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए, 4 डिफरेंट नंबर का, जो मिलके मिलके जो 10 होता है, मीन्स when you add these numbers, add these different numbers, which is important. तो सारे नंबर्स अलग अलग होने चाहिए, जिनको ऐड करके मुझे 10 मिलेगा, राइट? तो ऐसे नंबर आपको 1 2 3 4 ये मिलेंगे, है ना? 1 2 3 4, 1 2 या 3 4, जीरो तो नहीं होगा, बस बताया हमने। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो उसमें 1 2 3 4 ऐसा ऐसा होगा। तो 1 2 3 4 हम लोग किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, चाहे ए का 1 होगा, बी का 4 होगा, सी का, ऐसा कुछ भी ऑर्डर में it will be there in the single author column, right? And they will add up to 10. तो ये आपका सेकेंड वाला भी we are through। अभी जो थर्ड वाला बोला है, both चिंतन एंड डेवन wrote more three author papers than Brejan। ओके, मतलब जो थ्री ऑथर पेपर्स है, वो थ्री ऑथर पेपर है, वो चिंतन और डेवन ने ब्रेजन से ज्यादा लिखे हैं। ठीक है, वी विल मेक अ नोट ऑफ इट एंड वी विल कम बैक टू इट। द नंबर ऑफ सिंगल ऑथर एंड टू ऑथर पेपर्स रिटर्न बाय ब्रेजन वर सेम। तो यहाँ पे जो ब्रेजन में सिंगल ऑथर, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, तो ब्रेजन में जो सिंगल ऑथर पेपर लिखे हैं और टू ऑथर पेपर लिखे, ये सेम होंगे, राइट? जैसे ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये 2 होगा, ऐसा दे हैव मेंशन इन फोर्थ एंड फाइनल इंफॉर्मेशन पीस ऑफ। तो वी आर डन विद ऑल दैट। नाउ वी हैव टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस कि इसका कैसा क्या होगा। तो इसमें हमको जो इसमें जो लॉजिक आपको यूज करना है, कि जो आपको एडिशन दिया है और जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि 4 ऑथर्स, तो इसमें जो 4 ऑथर्स वाला है, वहां से आप इसको यू कैन स्टार्ट अनब्लॉकिंग दिस, राइट?
कि इसमें एक जो आपको एक रो वाला एडिशन दिख रहा है और एक कॉलम वाला एडिशन दिख रहा है। तो प्राइमरीली तो मैं कॉलम वाले एडिशन से जा रहा हूँ, और मैं पैरेलली ये चेक करूंगा कि रो वाला एडिशन भी मैच हो। इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना होगा कि हर एक जो बॉक्स है उसमें एटलीस्ट वन तो आना चाहिए, जीरो नहीं आएगा कहीं। मतलब ए से एक कंट्रीब्यूशन हर एक इसमें आएगा, बी से भी एटलीस्ट वन कंट्रीब्यूशन शुड बी देयर इन एवरी टाइम. So this I have to keep in mind, and then the other facts we have already captured, and one of like third adjustment we have kept in, like we will come back to it at some point of time when we will be in the mid of unlocking that kind of information, right? So यहाँ पे अभी फोर ऑथर्स की जब बात की है, तो फोर ऑथर्स में टोटल पेपर कितने थे? दो ही पेपर थे, राइट? तो ये मल्टीप्लाई करके, टू मल्टीप्लाई बाय फोर किया था, तभी ये एट आया। तो जो दो पेपर लिखे हैं उसमें ये चारों के चारों बंदे होंगे। तो ये चारों के चारों बंदों ने दो पेपर लिखे हैं, तो इनका चारों का भी कंट्रीब्यूशन दो पेपर में रहा होगा। तो एवरी इंडिविजुअल एवरी ऑथर ए बी सी डी must have been involved in all two papers, right? Agreed? Agreed, or any questions? If you have any questions, you can uh, comment. Okay. So four authors, and every author will be involved in all two papers that were written. Right? This eight is like the contribution. I mean, how many how many appearances were there for each of the author? So it will be like two. बी वॉज देयर इन ऑल टू पेपर। तो अगर चारों ऑथर हैं तो ए बी सी डी ये ऑर्डर में, ए बी सी डी ये चारों आएंगे ना दोनों पेपर में। तो ये ए मतलब डी भी दो पेपर में था, सी भी दोनों पेपर में इन्वॉल्व होगा, डी भी दोनों पेपर में इन्वॉल्व होगा, और ए भी दोनों पेपर में इन्वॉल्व होगा, राइट? अब मैंने देखना है रो वाइज जा रहा हूं मैं। तो ए का ए ए हैज टोटल फाइव, ए हैज ऑथर टोटल फाइव पेपर्स, राइट? रिटर्न टोटल फाइव पेपर। तो उसमें से टू तो यहाँ पे निकल गया, राइट? अभी बाकी इसमें कोई भी कॉलम में जीरो नहीं आ सकता, है ना? इसमें कोई भी कॉलम में जीरो नहीं आ सकता। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इट विल बी वन वन वन, राइट? तो यहाँ पे वन कर दो, यहाँ पे वन कर दो, यहाँ पे, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। नन ऑफ द कॉलम आई कैन नन ऑफ द बॉक्स आई कैन पुट जीरो because of the first piece of information that they have given. So A has single authored one paper. A has A was part of A was A has A was part of one two author paper. So he might have paired with someone like A B होगा या A C होगा या A D होगा, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन में। जो टू ऑथर वाला इसने किया है उसमें ए का कितना पेपर है? एक। और जो थ्री ऑथर वाला होगा लाइक ए बी सी, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन, या ए बी डी, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन, तो उसमें एक पेपर में ए का इन्वॉल्वमेंट है, राइट? तो वो हमने नोट कर लिया। अभी इसके इसके बाद ये जो है ब्रेजन का सिंगल ऑथर और टू ऑथर, सिंगल ऑथर और टू ऑथर, ये दोनों उसका सेम है, राइट? इसमें बोला है ना ये वाला जो एडजस्टमेंट है, लास्ट वाला, द नंबर ऑफ सिंगल ऑथर एंड टू ऑथर पेपर रिटर्न बाय ब्रेजन सेम। तो ये दोनों सेम होने हैं। तो सेम अगर होने हैं तो हमारे पास एक तो चला गया, ये वाला जो कॉलम है, इसमें वन टू थ्री फोर आना है इसी ऑर्डर में। तो वन तो चला गया, तो यहाँ तो टू आएगा, यहाँ तो थ्री आएगा, यहाँ तो फोर आएगा। तो हमने सारे ही ले लिए, टू थ्री फोर, राइट? फिर अगर ये टू है तो ये भी टू होगा। अगर ब्रेजन का सिंगल ऑथर में टू है कंट्रीब्यूशन, तो टू ऑथर्स में भी टू होगा, राइट? अगर तीन है तो तीन होगा, क्योंकि दोनों सेम है। ये फोर्थ एडजस्टमेंट बोल रहा है कि ब्रेजन का जो कंट्रीब्यूशन है सिंगल ऑथर पेपर में और टू ऑथर पेपर में, वो सेम है, इक्वल है। तो
मैंने 2, 3 और 4 ये तीनों पॉसिबिलिटीज ले लिया। बट जब मैं इसको रो वाइज एडिशन करूंगा, अभी जो पी वाला जो ये रो है, इसमें जब एडिशन करूंगा तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। राइट, मतलब 2 + 2 + 2 + 2, मतलब 4 बार जब दो को मैं ऐड करूंगा तो ये 8 आ जाएगा, ये वाला। आप मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए। तो बी का टोटल जो बी ने जो टोटल पेपर लिखा है वो 8 आ जाएगा। राइट, बट अगर मैं ये थ्री थ्री ले लेता हूँ, इसको इसलिए मैंने रेड में मार्क किया है, ये 3 ले लेता हूँ तो यहाँ भी मुझे 3 लेना पड़ेगा। राइट, तो ये 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये 4 ऑथर्स वाला 2, और यहाँ पे 0 आएगा, जो कि नहीं हो सकता। हम ना, हमारा जो पहला इंफॉर्मेशन दिया उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। इट विल कॉन्ट्राडिक्ट विद द फर्स्ट piece of information. So it can't be 3, it can't be 4 as well, because 4 and 4, तो यहाँ पे ही ये 8 हो जाएगा। लाइक 4 और 4 का एडिशन करोगे तो इन दो, adding this single author and two author contribution of B, it will come out to 8, and it will exceed 8 even. So it can't be 3 or 4, it will be 2 and 2 only, right? So we will make a final note like B के जो कॉलम में है, तो B में सारे ही टाइप के पेपर में उसका दो दो बार उसका कंट्रीब्यूशन है, राइट? तो सिंगल ऑथर पेपर जो बी ने लिखा है वो दो है। जो टू ऑथर में बी दो बार इन्वॉल्व है, थ्री ऑथर वाले में भी 2 बार इन्वॉल्व है, और जो 4 ऑथर वाला है उसमें भी ये 2 बार इन्वॉल्व है, ये हम कह सकते हैं। राइट, तो अभी यहाँ तक हो गया। अभी नीचे वाला जो है, अभी ये जो ऑर्डर है 3 और 4, तो ये यहाँ या तो 3 और 4 आएगा, यहाँ या तो, अगर यहाँ पे 3 आ गया तो नीचे मेरा 4 आएगा, है ना। 1 2 3 4, तो इसका एडिशन 1 + 2 + 3 + 4, तो ये 10 आएगा। अगर 3 नहीं आया तो 4 लेना पड़ेगा, फिर नीचे मेरा 3 आएगा, मतलब 1 2 1 और 2 3, और फिर 4 7, और +3 10। तो ऐसा ऐसा कुछ आएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने लिख लिया। राइट, अभी अभी और क्या बोला है कि चिंतन एंड डेविन रोट मोर थ्री ऑथर पेपर्स देन ब्रेजन। तो ब्रेजन ने कितने लिखे हैं थ्री ऑथर पेपर? 2। राइट, ब्रेजन ने कितने लिखे हैं? 2 पेपर लिखे हैं ब्रेजन। थ्री ऑथर पेपर काउंट इज 2, तो 2 से अधिक लिखने पड़ेंगे सी और डी को, मतलब ये जो नीचे जो थ्री ऑथर वाला कॉलम है इसमें 2 से अधिक आएगा, मतलब 2, मोर देन 2 आएगा। 2 भी इक्वल भी नहीं बोला है, मोर देन 2। तो या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। राइट, बट अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये जो कॉलम का एडिशन है थ्री ऑथर वाले, ठीक है, वो 1 + 2 + 3 + 3 6, और नीचे फिर कितना आएगा? 3। तो ये बैठ रहा है इस कंडीशन में कि जो सी और डी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बी से ज्यादा होना चाहिए, विच इज आर थर्ड इंफॉर्मेशन। राइट, बट अगर मैं 4 लेता हूँ, राइट, अगर मैं 4 लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ कि दो 2 से 4 भी ज्यादा है, तो ये 1 + 2 हो जाएगा 3, +4 हो जाएगा 7, और +2 हो जाएगा 9। राइट, बट ये दो नहीं हो सकता, क्योंकि सी और डी दोनों का ही जो कंट्रीब्यूशन है थ्री ऑथर्स में वो बी से ज्यादा है, वो बी से ज्यादा है। तो ये दो, अगर बी 2 है तो बी का 2 से ज्यादा ही होना चाहिए, तो एटलीस्ट 3 आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये 3 और 3 आएगा, तो इसलिए मैंने 3 को ब्लैक में रखा है, और 4 और 5 को रेड किया, और यहाँ पे 2 और 1 को भी रेड कर। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। अभी जो लास्ट चीज बचा है उसको हम लोग ये रो वाइज एडिशन से हम लोग जा सकते हैं, है ना। रो वाइज एडिशन से हम लोग जा सकते हैं कि जैसे मैं अभी सी वाला रो ले लूं, और उसमें मैं जो फर्स्ट है 3 + 3 6, +2 3 + 3 6, और +2 8, ऐसा कुछ आ रहा है। राइट, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। 3, मतलब ये 3 + 4 7, +3 10, और फिर ये +2 12। राइट,
तो ये रो वाइज एडिशन आप ऐसे करो, देखो ये। फिर अगर मैं 4 लेता हूँ, तो दिस विल बी 4, राइट। 3 ऑथर्स में इट विल बी 3, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, ओके, एंड 12 माइनस 9 इज 3। तो 2 ऑथर्स में मेरा 3 आएगा, है ना। 2 ऑथर्स में जो सी का रो है और 2 ऑथर्स का कॉलम है, उसमें मेरा 4 या 3 आ सकता है। तो सिंपली ये रो वाइज एडिशन मैंने 3 और 4 अलग अलग केसेस बना के, इसको या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा, ऐसे वी हैव मेड एन इन्फ्रेंस, इट कैन बी इधर 4 और इधर 3, राइट। अभी लास्ट वाला भी ऐसे ही करना है कि जो डी वाला जो रो है, उसका एडिशन 10 है, राइट। सिंगल ऑथर में या तो 4 होगा या तो 3 होगा। और यहाँ का तो हमको पता है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, राइट। जो रेड में दिया है वो हमने कैंसिल कर दिया, वो नहीं नहीं आ रहा पॉसिबल। तो ब्लैक वाला आप देखो, सी और डी के दोनों के रो में। तो सी वाला तो हमने कर लिया, डी वाला व्हेन वी विल add up all these, like 4 plus 3 is 7, then plus 2 here, 4 plus 3 is 7, plus 2 is 9, and when we deduct 10 from 9, it will be what? 1. And for second case, 3 plus 3 is 6, plus 2 is 8, and 10 minus 10, 10 minus 8 is 2. So it can be either 1 or 2, right? So we are true with the entire matrix. Okay. So in this we have like two cases. तो जो सिंगल ऑथर में सी और डी है, उसमें या तो 3 या 4 हो सकता है। और जो टू ऑथर्स में सी और डी है, उसमें 4 या 3 हो सकता है। बाकी सब तो एग्जैक्ट काउंट्स वी आर एबल टू फाइंड। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। तो वैसे का वैसा मैंने टेबल यहाँ पे उठा लिया, मतलब जो लास्ट हमने जो फाइंड किया था, तो वो टेबल आई हैव जस्ट कॉपी पेस्टेड हियर। नाउ वी विल लुक इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ टू ऑथर एंड थ्री ऑथर पेपर्स रिटर्न बाय ब्रेजन? तो ब्रेजन मतलब बी। तो बी में कौन से बोला है? टू ऑथर, तो टू ऑथर के दो है और थ्री ऑथर के भी दो है। तो आप इनको ऐड कर दो, 4। So this was your answer. This was a theta question. So for 19 questions there was no negative mark, right? तो B का क्या है? 19 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 4। Then coming to the next question, which of the following statements are necessarily true? Now necessarily they have mentioned in bold letters. So when you will deal with logical reasoning, these type of sentence, not necessarily, necessarily, और अल्टरनेटिवली और कैन बी, ऐसा कुछ जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है लॉजिकल रीजनिंग की, कि लॉजिकल स्टेटमेंट कैसे प्लेस किया जाता है, उसको आपको उसके डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन बाय द वे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नेसेसरीली ट्रू, मतलब जरूरी है कि वो, मतलब सही है इन दोनों में से, क्या दोनों सही है, राइट। मतलब क्या दोनों सही है? क्या सिर्फ दो, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, या फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो आप उसको वैलिडेट कर रहे हो, राइट। यू हैव टू वैलिडेट दिस स्टेटमेंट। So first one is Chintan wrote exactly three two author papers. So first one, Chintan wrote exactly three two author papers. नहीं, तो इसमें तो अपना केस बनाओ। केस मतलब एक, या तो 4 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। तो फर्स्ट वाले में हम लोग चौकड़ी मार सकते हैं, एक क्रॉस मार सकते हैं कि फर्स्ट वाला तो ट्रू नहीं है। चिंतन रोट मोर सिंगल ऑथर पेपर्स देन डेविन। चिंतन रोट मोर सिंगल ऑथर पेपर्स देन डेविन। यहाँ पे भी वही मसला है, यहाँ पे भी लाइक केसेस बने हैं सिंगल ऑथर वाले कॉलम में, सी एंड डी। तो यहाँ तो 3 हो सकते हैं, तो 4 हो सकता है। तो अगर 3 होगा तो डी ज्यादा लिखेगा, और अगर सी का 4 होगा तो फिर डी कम लिखेगा, सी ज्यादा लिखेगा। तो इसीलिए ये सेकंड वाला भी स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट्स नॉट ट्रू। तो यहाँ पे भी वी कैन क्रॉस, सो वी कैन से नीदर वन और टू, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट आर नॉट नेसेसरीली ट्रू।
both the statements are not necessarily true, right? Neither I और nor true, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, राइट। तो बाकी ऑप्शन है ओनली टू का सही, मतलब मैं ऐसे ही आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा इसके ये क्वेश्चन को हम लोग और गहराई से समझेंगे कि ओनली टू मतलब सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन सही है और फर्स्ट वाला नहीं है। बोथ आई एंड बोथ वन एंड टू मतलब दोनों भी नेसेसरीली ट्रू है, और ओनली आई मतलब ओनली फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। अब मैं ये इसलिए पढ़ा कि कई सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं ऑप्शंस को समझने में, और इवन जो चीज पूछा है वो नहीं समझ पाते। मैट्रिक्स पूरा सही आ जाता है बट क्वेश्चंस में कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और क्या पूछा है वो भी आपने ध्यान से देखना है। और अगर यहाँ पे पूछा होता नेसेसरीली की जगह पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मे बी ट्रू, मे बी ट्रू होता तो क्या आंसर होना चाहिए था ये क्वेश्चन का, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया कि कैन बी ट्रू और मे बी ट्रू, माइट बी ट्रू ऐसा करके इसको, कि हो सकता है, शायद पॉसिबिलिटी है, पॉसिबली ट्रू ऐसा ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो फिर उसमें ये फिर क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा और आंसर आपका अलग आएगा। तो क्या आएगा आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक। अभी ये सिंगल ऑथर, फिर से मैंने ये टेबल यहाँ पे ले लिया, ये 21st क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नेसेसरी टू, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है। अर्मन रोड थ्री ऑथर अर्मन रोड थ्री ऑथर पेपर्स ओनली विथ चिंतन एंड डेविन, ड्रैगन रोड थ्री ऑथर पेपर्स ओनली विथ चिंतन एंड डेविन, राइट। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, राइट, दोनों की चीज। क्योंकि देखो चिंतन ने तीन पेपर लिखा है, थ्री ऑथर पेपर की बात हो रही है ना, थ्री ऑथर पेपर, तो थ्री ऑथर पेपर वाला कॉलम आप देखो, तो इसमें चिंतन ने भी तीन लिखा है, डेवन ने भी तीन लिखा है। तो उनके साथ कोई ना कोई एक बंदा जुड़ा होगा, है ना। उनके साथ अगर सी और डी थ्री ऑथर पेपर में है तो उनके साथ हर एक पेपर में कोई एक बंदा जुड़ा होगा, और वो हो सकता है ए हो या बी हो, इनके अलावा तो कोई ई नहीं है, तो ए या बी हो सकता है। तो इसीलिए ये वाला तो बोथ स्टेटमेंट्स आर नेसेसरीली ट्रू ये हम कह सकते हैं। तो जैसे है कि ए का अगर प्री ऑथर वाला कॉलम आप देखो, ए वन है, राइट, प्री ऑथर वाला कॉलम आप देखो, तो इसमें ए का कितना है वन, बी का टू है, सी का थ्री है और डी का थ्री है, राइट। तो इसमें सी और डी तो तीनों पेपर में आएंगे, तो सी और डी, और बी का कितना है दो है, तो बी दो बार आएगा और ए एक बार आएगी। तो ये पूरा ये जो टेबल है इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि सी डी ए होगा, तो ए का एक पेपर आ जाएगा, राइट। सी और डी का तीनों पेपर आ रहा है, तीन तीन है, और बी दो बार आ रहा है, बी का दो पेपर है। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, मतलब ये थ्री आंसर वाला, राइट। तो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, है ना। अभी इसमें आपको अगर थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए तो मैं ऐसे कहूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नेसेसरीली फॉल्स, ऐसा कर देते हैं इसको। तो इसका आप मुझे आंसर कमेंट्स में आप डाल सकते हो। तो 21 को अगर मैं ये क्वेश्चन को अगर ऐसा घुमाया होता एग्जामिनर ने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरीली फॉल्स, तो इसका आंसर क्या होता और क्या क्या मतलब कौन सा होता, वन टू थ्री फोर, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन, इफ डेवन रोट मोर देन वन टू ऑथर पेपर्स, then how many two author papers did did चिंटन, मोर देन वन बोला है, मोर देन वन बोला, मोर देन टू नहीं बोला, मोर देन वन बोला है कि इफ डेवन रोट मोर देन वन टू ऑथर पेपर, तो डेवन के इसमें कितना है टू ऑथर पेपर, वन एंड टू है, राइट, वन एंड टू है। तो इसमें एक से ज्यादा लिखा होता मतलब ये दो लिखा होता है सपोज, तो दो लिखा होता, अगर अगर इसमें दो लिखा होता तो सी का कितना हो जाता, तीन हो जाता है ना। ये हमारे टेबल में ही है, हमें कहीं जाने का जरूरत नहीं, ये हमारे टेबल में ही है। तो दिस दिस दिस